Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are doing well. Myself, my name is Alia Yasir. I am a BCA BA and an IBA. And also right now, I have my co-instructors and supervisors present with me right now. Abdullah Hassan is here. He is an MS in educational psychology. He is also a lecturer in Bahia University, Peshawar, and also completed his IBA coursework in 2023. More detailed information about them or introduction will be given by him because it's a really long detailed introduction, so I cannot remember it. And also we have Sara Stars. She is also a co-instructor. She is an MPhil in clinical psychology in Peshawar, based in Peshawar, and she completed her IBA coursework in 2023 as well. And she has been, both of them have been our co-instructors and supervisors mainly in our previous batch, 2024 batch, which is ending soon. So before starting, I would share the agenda for today's meeting. It is our about orientation meeting or orientation seminar of our upcoming International Behavior Analysis coursework program 2025, which is starting from 1st December 2024. And it is going to end, inshallah. अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करवाया जैसे हमारा पहला बैच इसी तरह से ये वाला भी it is scheduled to end in October 2025, which is 11 months duration basically. So it's an orientation seminar for that batch because a lot of people were coming to us with questions and concerns, and they wanted more information about that program, which we did share on our website, www.bsentherapy.com, but still more details were needed, and students also wanted to arrange a seminar, so we gathered everyone here and decided to, brief you about some things, some important pointers mainly. Okay? So before starting, let me share with you a feedback video from our 2024 students, जिनका बैच अभी खत्म नहीं हुआ है, होने ही वाला है. They are in their last month. ये वाला इनका नवंबर लास्ट मंथ है और फिर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. और कुछ गर्ल्स ने फीडबैक दिया है और कुछ अभी देने वाली हैं, हो सकता है दें, हो सकता है ना दें. इट्स completely voluntary. So we will be sharing more feedback hopefully soon inshallah taala, but अभी का जो feedback है वो मैं आप लोगों को वीडियो फॉर्मेट में दिखा दूं पहले. Okay, let me open and share my screen. My name is Mariam Jahangir and I'm working in the Center of Excellence for Special Children with Autism, Peshawar. मैंने जो है तो अपना IBA कंटिन्यू किया मैम आलिया के साथ, एंड शी इज अमेजिंग पर्सन. हम लोगों ने जितना भी इनसे सीखा, जितनी नॉलेज गेन की, जितना हम लोगों में इम्प्रूवमेंट्स आई, आई एम रियली थैंकफुल मैम का कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया. इनके जो सुपरवाइजर्स थे, दे वर अमेजिंग. सर अब्दुल्ला, ही वाज अमेजिंग. उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की जब हमारी सुपरविजन मीटिंग्स होती थी. इसके अलावा द वन जो कि बहुत जरूरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि मैम के नोट्स, इतने स्पेसिफिक नोट्स और इतने ऑब्जर्वेंट नोट्स के इंसान को मतलब पूरी नॉलेज एक साथ, वो कहते हैं ना दरिया को पूजे में बंद करने वाला, मैम इस तरीके से मैम ने हमारे साथ
इतनी कॉपरेशन के साथ काम किया। एंड मैम थैंक यू सो मच। वी लिटरली हम आपका बयान करने के काबिल नहीं है कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा हमें एक वो दिया, और अल्लाह आपको इसका बेहतरीन सबब दे के हम इन बच्चों के साथ और बेहतरीन काम कर सके। थैंक यू सो मच मैम। Assalamu alaikum. My name is Tahira and I am working as a psychologist at Center of Excellence for Special Children with Autism. And she is Sira Imtiaz. She is also working as a psychologist at Center of Excellence for Special Children with Autism. So अभी हमारा जो IBA का कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है, और मैम आलिया यासिर से ही हम लोगों ने ये कोर्स लिया है। 11 मंथ्स का ये कोर्स था और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मैम आलिया ने कोर्स वर्क के साथ साथ हमें सुपरविजन भी प्रोवाइड की है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था IBA का, और हमने काफी कुछ सीखा है। प्रैक्टिकल वर्क बहुत अच्छे से करवाया मैम आलिया ने। और मैम आलिया थ्रू आउट द सेशन हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव रही हैं। और बाकी जो हमारे सुपरवाइजर थे सर अब्दुल्ला, मैम अस्मा और मैडम सारा इसरार, उनसे हमेशा हमें हेल्प मिली है। हमारी जितनी भी क्वेरीज थी उन्होंने हमें प्रॉपर आंसर्स भी दिए हैं। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस throughout these 11 months. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Hiba and I did my IBA training with Ma'am Alia Yasir. It was one of the best experiences of my entire educational journey. She is so thorough. She is a great mentor. It was a very in-depth training. All the instructors were amazing, always ready to help. I have learned so much and I feel like I almost don't want the training to end. I look forward to Sundays, look forward to her lectures, and I would suggest to everyone to take the training with Ma'am Alia Yasir, whatever, any IBT, IBA training, CEUs, whatever. She has a lot of knowledge and she's an excellent mentor and teacher, and I wish her all the best and thank you to her. Assalamu alaikum. This is Masooma Naqvi. I'm the professional ABA therapist. I'm lucky to have this course with Miss Alia Yasir. Though the course was so intense with a complex goal and task, but Miss Alia and her team made it more easier and interesting through their dedication and high motivation. They led us all to accomplish this task. Thanks for the great experience and the beautiful memories. Assalamu alaikum. My name is Sara Imtiaz. I want to thank Ma'am Alia Yasir for her exceptional supervision, and her guidance and constructive teaching have not only helped us, also inspired us to strive for excellence every day. I truly appreciate her support and dedication towards our batch. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Wajia Mujib. I have taken the International Behavior Analyst training from Ma'am Alia Yasir, and I would highly recommend it because the way the coursework was designed, it was very intense, very interesting, very well explained, and the way ma'am delivered her lectures, it was just amazing. इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव रही हैं। मुझे बहुत मज़ा आया है ये ट्रेनिंग अटेंड करने में। 11 मंथ्स का स्पैन था इसका। जनवरी 2024 में ये स्टार्ट हुई थी, नवंबर 2024 में ये एंड हो जाएगी, जिसके बाद हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपना एग्ज़ाम देंगे एंड इंशाल्लाह वील बिकम एन इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट। मेरे साथ मेरी क्लास में 24 और कैंडिडेट्स रहे हैं। क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अमेजिंग रही है। हमारे सेशंस इंटरैक्टिव रहे हैं। बहुत मज़ा आया है ये ट्रेनिंग करने में। और स्पेशली जो हमें असाइनमेंट्स दिए जाते थे, क्विज़ दिया जाता था, डिस्कशन पोस्ट वगैरह दी जाती थी, प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, तो हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे और आइडियाज़ जनरेट होते थे। हम बेहतर तरीके से ये चीज़ कर पाते थे। ओवरऑल इट हैज़ बिन अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु एस्पायर्स टू बी अ बिहेवियर एनालिस्ट। थैंक यू सो मच आलिया यासिर एंड हर अमेजिंग टीम। थैंक्स अ लॉट। Okay, so I hope that the video was audible and visible to you guys. कहीं पे कोई अटका तो नहीं था, कोई मामला बीच में, आवाज वगैरह तो नहीं रुकी थी? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छा था, सब कुछ समझ में आया प्रॉपर्ली। Thank you, Rabia, for confirmation.
Okay, so agenda for today's orientation. अब इसकी तरफ चले जाते हैं. This was a little feedback from our previous students and honestly we are very sad कि वो वाला batch खत्म हो रहा है because it was an amazing batch. जितना candidates ने मेहनत की है throughout this 11 months duration और जितना hard work put किया है, no doubt about it. यानी मैंने उनको बहुत तंग किया है but still they did it, माशाल्लाह ताला और माशाल्लाह सुभान अल्लाह. और इसके अलावा I would really like to thank right now to my co-instructors, especially Sara, Abdullah and Asma. Amazing, यानी कि जितना इन लोगों ने regularly supervision meetings conduct की हैं throughout the course, बगैर non-stop, without skipping a week. यानी कि कोई हॉलीडे आ जाती थी, पब्लिक हॉलीडे, तो स्किप हो जाता था, अदरवाइज हमेशा होते थे. और विदाउट देयर सपोर्ट वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स वर्क. सो थैंक यू सो मच. Abdullah and Sara are here right now and Asma also. Asma is doing उसका मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं. She is completing her masters in applied behavior analysis from Mary Baldwin University. Almost last semester is remaining. And she has been helping with assignment checking and coordinating with the students and everything, all the queries and all the assignments, everything. Superb help from her as well, mashallah. So थोड़ा सा मैं आपको brief कर दूं course work से related. उसके बाद फिर we will move on to related to supervision topic, ठीक है? तो एक बात मैं clear कर दूं कि course work is a separate thing and supervision is a separate requirement. Coursework means 270 hours of coursework, जिसके अंदर आपकी intense training होती है, आपके साथ books share होती हैं, articles share होते हैं, podcast share होते हैं, और and of course आपके साथ lecture share होता है. It also includes assignments, weekly assignments, and quizzes also, what you learned throughout that week. And it also includes midterm projects, end of term project, and then after so intense work we have an end of term break. So what our design of our system is, basically we have 4 terms throughout the coursework. हर term में एक mid term आएगा और एक end term आएगा, और उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है 1 week का, जिसमें आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं और तैयारी करते हैं अपने नेक्स्ट वीक की. और मीनवाइल वी आल्सो चेक योर असाइनमेंट्स एंड ग्रेड यू ऑन दोस असाइनमेंट्स एज वेल. हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है कोर्स वर्क का, दैट इज 75% मिनिमम, ठीक है? यानी कि आपके 75% मार्क्स आने चाहिए ओवरऑल इन अ टर्म, ठीक है? And I can assure you that if you are regularly attending the classes and you are attempting the quizzes, then it is very easy to pass that, ठीक है? हमारे पास almost 60-70% students हैं जिनके above 90% marks आते हैं. So data तो हमें यही बताता है. और कुछ students हैं जिनके 80% आते हैं, कुछ students हैं जो कि 75% से above ले लेते हैं marks. सिर्फ एक स्टूडेंट है जिससे मुझे शिकवा है, जो कि पास नहीं कर सकी, उसके 75% से भी कम मार्क्स आते हैं हुए, और उसकी वजह ये थी अटेम्प्ट नहीं करना. यानी कि अगर उसने असाइनमेंट छोड़ दिए, स्किप कर दिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका 0 ग्रेड आ जाएगा, और जब 0 ग्रेड आ जाएगा तो फिर आपकी ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाती है, वट एवर यू डू, ठीक है? तो अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हो सारे क्विजेस, सारी असाइनमेंट्स, कुछ स्किप नहीं करते हैं, तो आप पास कर जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? Please make it easy for us. Always attempt the quizzes timely manner, in a timely manner. यानी कि अगर आपको एक हफ्ता दिया गया है, आपको डेडलाइन दी गई है, उसी डेडलाइन में आप कंप्लीट कर लीजिए. अगर आपको इससे ज्यादा ऊपर चला गया, your 5% marks will be deducted, or probably we will not be accepting after the term ends. यानी कि अगर term end हो गई है और उसके बाद आप कुछ भेज रहे हैं, it will be very difficult for us to check at that time, ठीक है? तो आप लेट करते हैं, आपके 5% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. अगर आप टाइमली करते रहेंगे सबमिट, तो दैट इज फाइन. अगर कोई एक्सक्यूज है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए कोर्स वर्क प्रोवाइडर, यानी कि आई एम बेसिकली द मेन इंस्ट्रक्टर, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि
फॉर सम रीजन मैं बीमार हूँ या अल्लाह ना करे कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, वी विल बी अकोमोडेटिंग दैट। लेकिन अगर एक कंसिस्टेंट आपने पैटर्न बना लिया है और एब्सेंट होने का और कंसिस्टेंटली आप स्किपिंग करते चले जा रहे हैं और बार बार एक्सक्यूजेस हैं, तो देन दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। तो ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला यू विल गो स्मूथली। एंड व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली is that we have a live coursework class on Sundays. संडे का टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है आफ्टर लाइक पहले वाले बैच वालों से सबसे डिस्कस करके, और सबने यही कहा, मेजॉरिटी जो थी वो संडे को अवेलेबल होती है फ्रॉम 10 AM to 1 PM। तो कभी क्लासेस 3 घंटे की हो जाती हैं, कभी थोड़ी सी आधा घंटा हो सकता है पहले एंड हो जाए, हो सकता है आधा घंटा बाद में एंड हो, यानी 1:30 भी इजीली हो जाता है, और कभी कभी 1:45 भी बज जाते हैं। तो इस तरह से हमारी क्लासेस बैलेंस आउट होती हैं। इसमें आपको इंटरैक्टिव एक्टिविटीज भी कभी कभी देखने को मिलती हैं, यानी कि एकदम से आपको सरप्राइज मिल जाएगा और एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई वुड रेकमेंड ऑलवेज अटेंड द लाइव क्लासेस एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना आपसे हो सके आप लाइव क्लासेस लाजमी अटेंड करें, वरना यू आर गोइंग टू मिस आउट अ लॉट ऑफ लाइव एक्टिविटीज। और फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें वो मज़ा भी नहीं आता, वो आप डिले करते चले जाते हैं, और यहाँ तक कि कोर्स वर्क एंड हो जाए और वो डिले ही हो जाए, टर्म एंड हो जाए तो वो डिले ही हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लाइव आप अटेंड कर लेते हैं ना, फिर बाद में आप रिविजन के लिए रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी फॉर 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा हम नहीं देते, 1 महीने के बाद हमें डिलीट करनी पड़ती है, जब तक आप बार बार चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स वर्क, एनीथिंग, एनी कंसर्न? If you guys have, then you can ask me right now related to coursework. ठीक हो गया? Thank you so much for confirmation. ओके, अब आ जाता है डिफिकल्ट वाला पार्ट। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमें कोर्स वर्क के साथ इतना ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन जो ज्यादा मुश्किल हुई वो सुपरविजन के कंपोनेंट में हुई। सुपरविजन इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट थिंग टू टैकल, टू बी ऑनेस्ट। सो अगर आप लोग सुपरविजन ले रहे हैं, उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं पहले बता दूं, फिर आई विल आस्क द सुपरवाइजर्स टू गिव देयर इनपुट। First and foremost thing is that you must be working with clients, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट 2-3 बच्चे हों जिनके साथ आप काम कर रहे हो, अदरवाइज आपकी सुपरविजन नहीं हो सकती। And you must be working for at least 10 to 15 hours per week, ठीक है। So सुपरविजन कैसे डिवाइड होती है? सुपरविजन के आवर्स 2 तरह के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। एक हो गया जिसको कहना चाहिए 1-on-1 सेशंस, और दूसरे हो गए जो आप प्लानिंग वगैरह करते हैं सुपरविजन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में अब्दुल्ला आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन कुछ आपने प्रैक्टिस विद क्लाइंट्स करनी है और कुछ आपने उनके बारे में रिपोर्टिंग और असेसमेंट्स एंड ग्राफिंग एंड सो ऑन, ये एक्टिविटीज जो हैं वो उससे मिला के आपका सुपरविजन एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। अगर आप बीच में स्किप करते हैं कोई मीटिंग अटेंड करना लाजमी है। सुपरविजन मीटिंग अगर आप कोई स्किप कर देते हैं, यू मस्ट इन्फॉर्म द सुपरवाइजर विच इज असाइंड टू यू, ठीक है। आप उसको इन्फॉर्म कर दें और अपना वर्क आप जो आपको असाइनमेंट्स उन्होंने दिए हैं वो कंप्लीट कर दीजिए। अगर इन केस आप नहीं कर सकते हैं तो भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस हफ्ते मेरा पूरा ही स्किप हो गया, आई एम सॉरी, आई वर नॉट एबल टू डू वर्क। और सुपरवाइजर्स आपको हफ्ते के हफ्ते हर वीक वर्क असाइन करते हैं विच इज एडिशनल टू कोर्स वर्क, यानी कि कोर्स वर्क के आपके टोटल अगर 6-7 घंटे हैं, 3 घंटे की लाइव क्लास है और 4 आवर्स की असाइनमेंट्स हैं, तो बाकी का आपका सुपरविजन का वर्क एडिशनल होता है, जिसमें आप उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपने कोर्स वर्क में सीखी। Whatever you have learned during the coursework class, you are going to practice with your clients and tell your supervisors, ठीक है। सो दो हमारी कंडीशंस हैं, एक तो ये कि आप वर्किंग कर रहे हो, दूसरा ये कि आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, और एक और कंडीशन है कि आपने मीटिंग अटेंड की हो, ठीक है।
So यहाँ से फिर मैं I would like to ask Abdullah, if you would like to add some pointers in it, then please go ahead so that everything is clear. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं सुपरविज़न रिलेटेड आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी आईबीटी में सुपरविज़न ली है तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। आईबीए का क्राइटेरिया है कि यू हैव टू कंप्लीट 1000 आवर्स ऑफ वर्क। अब 1000 आवर्स में दो टाइप्स के आवर्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इज समथिंग जो आप डायरेक्टली बच्चों के साथ एबीए जो है प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपी जो आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट, और उसको हम आईबीएओ जो है उसको इम्प्लीमेंटिंग आवर्स कहते हैं। सो बेसिकली आपको 400 इम्प्लीमेंटिंग आवर्स करने होते हैं, और जो इनडायरेक्ट आवर्स होते हैं दैट इज़ कि आप बच्चों का प्लानर बना रहे हैं, आप ड्राफ्ट्स बना रहे हैं, आप कुछ यूट्यूब पे कोई इंटरवेंशन सर्च कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हैं उस क्लाइंट से रिलेटेड, आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनडायरेक्ट आवर्स में काउंट होती हैं। असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट आवर्स को आईपीएओ जो है प्रोग्रामिंग आवर्स जो है उसको लेबल करता है। सो बेसिकली 1000 में से 400 इम्प्लीमेंटिंग आवर्स एंड 400 प्रोग्रामिंग आवर्स आप लोगों के लिए करना कंपलसरी है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 200 आवर्स होते हैं उसमें आईपीएओ जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप वो 200 आवर्स बेशक प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्लीट कर लें या फिर इम्प्लीमेंटिंग के थ्रू कंप्लीट कर दें, या फिर दोनों को मिक्स करके जो जिस जिस हिसाब से करना चाहता है उसको कंप्लीट कर सकता है। बट द बेसिक क्राइटेरिया इज़ 1000 टोटल आवर्स, उसमें 400 ईच प्रोग्रामिंग होंगे और इम्प्लीमेंटिंग आवर्स होंगे। इसके अलावा जो मीटिंग है दैट हैज़ टू बी कंडक्टेड एवरी वीक, अनलेस कोई ईद आ जाती है या कोई इस तरह का है जिसमें वो आपको इन एडवांस इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या सेमेस्टर ब्रेक आ गया बीच में तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस वीक मीटिंग नहीं होगी। उसके अलावा मीटिंग जो है वो हर वीक होगी, जो डिसाइड हो जाएगा, दिन भी डिसाइड हो जाएगा, टाइम भी डिसाइड हो जाएगा। मीटिंग विल बी अबाउट 1 आवर। अब आईपीएओ का क्राइटेरिया ये है कि 1 आवर की मीटिंग के ऊपर आप 20 आवर की प्रैक्टिस के ऊपर आपका 1 आवर की मीटिंग रिक्वायर्ड होती है। सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग 20 आवर्स अ वीक तो 1 आवर की मीटिंग आपने जो है वो अटेंड करनी होती है। तो जो सिंपल मैथ्स है उसके अकॉर्डिंगली हम जो दिसंबर के स्टार्ट में अपनी सुपरविज़न अगर स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बिफोर कोर्स वर्क एंड्स, और जो कि मैम ने जैसा कहा था कि इंशाल्लाह अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर एंड होगा, उससे पहले आपके 1000 आवर्स आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ कि आप टाइमली अपनी आईबीए की रजिस्ट्रेशन कराएं, टाइमली सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट भेजें, टाइमली अपना जो सुपरविजन कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करें, और टाइमली जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो क्या उसको रिकॉर्ड पे रखें, जो सारा डाटा वगैरह है, जो सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा आई विल क्रिएट योर फोल्डर ऑन गूगल ड्राइव। सो जो पहले आईबीटी की सुपरविज़न ले चुके हैं उनको आइडिया है, बाकी सबके लिए कि गूगल ड्राइव पे आपके नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा, आपने अपनी ईमेल आईडी शेयर करनी होगी तो आपको उसकी एक्सेस दे दी जाएगी। सो ईच वीक जो आप काम कर रहे होंगे अपने क्लाइंट के साथ, जो उसकी रिक्वायरमेंट है रिमोट सुपरविजन की कि आपको डीटीटी की आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप उसकी वीडियो शेयर करेंगे। फर्दर कोर्स वर्क में जब आप ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड अगर ग्राफ्स का कहा है तो वो अपलोड करेंगे, डाटा शीट्स हैं तो वो अपलोड करेंगे, कोई असाइंड टास्क दिया है आपको उसकी वीडियो बनानी है वो अपलोड होगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोल्डर में जी अपलोड किया करेंगे, और जो सुपरवाइज़र्स हैं वो बिफोर मीटिंग वो सारी चीज़ें देख के आपको उस पर फीडबैक देंगे। और एक चीज़ शायद मैं मिस कर रहा हूँ,
हाँ जी, नहीं मैंने शायद बता दिया है कि आप लोगों को सबसे पहले करना ये है कि अपनी रजिस्ट्रेशन जो है आईबीए की वो टाइमली करवा लेनी है। आई वुड वांट कि आप लोग कोर्स वर्क स्टार्ट हो तो उसके साथ ही आप सुपरविज़न अपनी जो आईबीए की रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें, क्योंकि जितना आप अपनी रजिस्ट्रेशन को लेट करेंगे उतना आपका जो है वो आवर्स कंप्लीट होने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो मीटिंग है वो रिकॉर्डेड नहीं होती। सुपरविज़न मीटिंग जो है वो आपको लाइव अटेंड करनी होती। सो अगर कोई मीटिंग स्किप कर रहा है और उसके जहन में ये है कि ये रिकॉर्डेड होगी और मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। सुपरविज़न मीटिंग की रिक्वायरमेंट ही ये है कि वो आपने लाइव अटेंड करनी है। आई होप सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और इंशाल्लाह वो हम वीडियो भी शेयर कर देंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट कैसा सबमिट करते हैं सुपरविज़न का, और वो सारी इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू। और ये मैं बता दूं कि हमारा सुपरविजन क्राइटेरिया थोड़ा सा इस सेंस में स्ट्रिक्ट है कि अगर आप, मैं दोबारा से री एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ यू विल इजीली डू इट, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप बहाना कर रहे हैं तो फिर हमें पता चल जाता है। वी हैव वेज टू लाइक रीचेक व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। सो काम कीजिए, बस हो जाएगा सब कुछ। और वर्किंग जो भी आप कर रहे हैं करंटली अपने क्लाइंट्स के साथ, ऑल ऑफ दोस आवर्स विल बी काउंटेड इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एबीए, यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की टेक्निक्स लगा के कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। और सारा, अगर आप कुछ इसमें एनीथिंग इफ यू हैव इन माइंड, एनी एक्सपीरियंस यू वुड लाइक टू शेयर, तो आप कर सकते हो शेयर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला और मैम ने जो है चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दी हैं। मैं ये ऐड करना चाहूँगी सुपरविजन के हवाले से कि जैसे अब्दुल्ला और मैम ने भी बताया कि सुपरविजन वो चीज़ें जो आप क्लास में जो है तो आपको पढ़ाया जाता है, वही जो है तो हम आपसे मोस्टली प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स डंडी इस बात पे मार लेते हैं कि वो जो है तो रोल प्ले करके आ जाते हैं, और वो चीज़ जो है वो रियल में करके नहीं आते हैं। तो जब तक आप बच्चे के साथ रियल में एक टेक्निक है, एक प्रॉपर जो है तो प्रोग्राम है वो नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या उसका बच्चे के बिहेवियर में क्या डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली रोल प्ले जो है वो तो आप किसी के साथ भी बैठ के कर सकते हैं, पर जब तक आप रियल क्लाइंट के साथ रियल सेटिंग में बैठ के वही टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कभी भी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। आपका भी उस तरह एक्सपीरियंस जो है उसके हवाले से नहीं होगा। तो सुपरविजन जो है तो उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लीजिएगा। वो जो है तो वही जो है आपकी मेंटोरशिप की बात हम करते हैं, वही जो है तो आपको आगे और जो है प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके जाती है। तो कोशिश करें कि जब आप कोर्स में एनरोल हों तो आप वो कहीं न कहीं जो है तो इफ यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, डू मेक योरसेल्फ एनरोल समवेयर जहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलें, आपके पास क्वांटिटी ऑफ क्लाइंट्स हों कि जो आप पढ़ रहे हैं कि आप साथ-साथ वो इम्प्लीमेंट भी कर सकें। थैंक यू। Thank you so much, Sara. That was a very important point which you raised. Role play was accepted for RBT and probably for IBT in some cases, little bit. लेकिन अब जो है IBA आपने करना है तो definitely role play will not be accepted. We need observation. So हमें आपको observation देने के लिए जरूरी है कि आपकी real clients के साथ आपकी observation हो, ठीक है? So आपको consent लेना होगा पेरेंट्स से, और उसके बाद यू डिसाइड द क्लास, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में रह गई रिलेटेड टू कोर्स वर्क, वो पॉइंट मेरे जहन में आया, वो ये कि कोर्स वर्क में कभी कभी आपको रिटर्न असाइनमेंट मिलती है, तो रिटर्न असाइनमेंट के लिए कुछ लोग क्या कर रहे थे, एआई कंटेंट जनरेट कर रहे थे। एआई कंटेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हमें जरा सा भी शक हो जाता है कि ये एआई रिटन मटेरियल है, तो हम उसको चेक करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, और फिर वहां पे आपके मार्क्स जीरो लग जाएंगे। सो डू नॉट यूज एआई कंटेंट। जबकि आपको रिटन एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चीज दी गई है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, छोटा सा पैराग्राफ ही होता है, तो वो आपको मेहनत करके लिखना होता है, ठीक है जी। सो देयर इज अ क्वेश्चन आई थिंक इन द चैट बॉक्स। यस, देयर इज अ रेज हैंड ऑप्शन, कैन यू सी इट? Can everyone see a raise hand option?
You can go ahead and ask Mehak. अस्सलाम वालेकुम मैम। इसलिए मुझे शो नहीं हो रहा हैंड रेज ऑप्शन, दिस वाज आई वाज आस्किंग इन द चैट। मैम मेरी क्वेरी ये है कि इफ वी आर नॉट वर्किंग समवेयर, लाइक हम किसी हॉस्पिटल में अभी फिलहाल काम ना कर रहे हो एंड हमें साथ साथ जैसे ये रिक्वायरमेंट है कि आप क्लाइंट्स के साथ डील करें और उसी तरीके से हमें आएगा, सीखेंगे हम, तो फॉर दैट मतलब देयर विल बी समथिंग यू गाइस कैन प्रोवाइड अस, लाइक एनी क्लाइंट, या फिर हमें कहीं खुद से अप्लाई करके और फिर उस पर सुपरविजन करवानी पड़ेगी? और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो मोस्ट हॉस्पिटल और मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजली अलाउ नहीं करते कि आप वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करें उनके ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। तो मेरे ये 2 क्वेरीज हैं और इम्पोर्टेंट। Thank you so much for your question. This is a very important question and it should be clarified right now. सबसे पहली बात ये कि supervision is not necessary for you to take with us. ठीक है, हम कोई compulsion नहीं लगा रहे। अगर आप इस वक्त काम नहीं कर रहे, you just want the coursework, you can get the coursework. ठीक है, आप supervision को separate कर लीजिए, उसके charges minus हो जाएंगे. You can contact directly with me. और कोर्स वर्क का आपको सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स वर्क, क्योंकि कोर्स वर्क काफी अच्छा खासा है, इसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो आप खाली कोर्स वर्क ले लीजिए। एंड ऑल्सो सम पीपल आर हियर जो कि मे बी वो डायरेक्टली काम कर रहे हो ऑलरेडी विद अ सुपरवाइजर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे तो सेंटर में ऑलरेडी IBA या BCBA मौजूद है, तो हम उनसे अगर सुपरविजन ले लें, आपसे ना लें। I am very happy with it, you know, it's because supervision is a lot of work basically, जिसके लिए हमें supervisors collect करने और सबको provide करना, एक same status और एक same value provide करनी पड़ रही है, right? तो अगर आपके पास supervisor आपके center में available है, तो आप उनसे request कीजिए कि आप मुझे supervision provide कीजिए। और it is always very good if you get it physically, you know, physically कोई आके आपको देख रहा है, तो it is very valuable for you. Please keep your mic muted. Thank you. So अगर आपको वहाँ पे available है, then please go ahead for that option. और अगर आपको अभी available नहीं है, आप थोड़े अरसे में शुरू करना चाह रहे हैं, you can also do that. कुछ अरसे में आप work करेंगे, that is totally fine. Okay. Yes. और फिर आप हमें बता दें, आप डायरेक्टली आप कोई प्राइवेटली भी क्लाइंट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट क्लाइंट्स आ गए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यू कैन डू एवरीथिंग इन पाकिस्तान, राइट? तो पाकिस्तान में आप ले सकते हैं प्राइवेटली और उसके साथ आप काम स्टार्ट कर दीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, वी कैन ऐड सुपरविजन, राइट? No, Mohammedan. We will not be taking the responsibility of providing clients to you, क्योंकि ये फिर हर जगह हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। Okay, so we do not provide that. Any other question if someone has? मैम अगर हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट हो, लाइक मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास तो एक ही स्टूडेंट होगा, तो उसके साथ तो हो जाएगी ना? क्योंकि अभी इन्होंने कहा सर ने कि यू मस्ट हैव टू बी वर्किंग विद 1 or 2 more clients, so that's why I'm asking. अगर एक क्लाइंट है क्या, तो क्या आप उसके साथ 10 आवर्स काम कर रही हैं? 10 आवर्स मिनिमम होना चाहिए पर वीक। मैम हाँ, सुबह 7:15 से दोपहर 2:30 बजे तक तो होते हैं हम, मतलब 5 days in a week. With the same client? With the same client, yes. Okay, then maybe we can accept it, but it's always recommended कि आप एक से ज्यादा लोगों पे, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करें और हाथ साफ करें, वो वाली बात है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अपने लिए बेहतर है। Maybe try to find more client in future, like 2-3 months के बाद अगर आप कोशिश करें तो ओके मैम, बस उसके लिए फिर सेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर सेंटर्स में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो आपके सेंटर में सिर्फ आपको एक ही क्लाइंट प्रोवाइड किया गया? नहीं मैम, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ ना, तो 1-to-1 में मेरा मतलब एक एज अ लर्निंग सपोर्ट तो मेरा एक ही स्टूडेंट है। ओके, ठीक है। So maybe you get more. Abdullah, what do you say about it? What do you think? मैम आइडियली अगर सिंपल मैथ्स के अकॉर्डिंगली देखें तो आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होने चाहिए।
5 वर्किंग डेज होते हैं एक वीक में, तो एटलीस्ट आप रोज़ाना अगर 2 आवर डायरेक्ट ABA थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं तो 5 वर्किंग डेज में आप 10 आवर्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 10 आवर्स इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको उस पूरे वीक में 10 आवर्स प्रोग्रामिंग भी करने होंगे, बिकॉज जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा दैट कैन नॉट बी लेस देन 20। ठीक है, क्योंकि आप 1 आवर की मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो एक एवरेज जो है वो 20 आवर की ही होगी। सो अगर आप उस पेस को मेंटेन करना चाहते हैं जो हमने जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, तो एट जिसको हम अगर मंथ वाइज देखें तो 80 आवर्स और 4 मीटिंग्स, 4 मीटिंग्स, ईच मीटिंग आपकी 1 आवर की होगी। तो इस तरह आपके विद इन 10 मंथ्स जो हैं 50 आवर्स सुपरविजन के भी कंप्लीट हो जाएंगे और 1000 आवर्स जो प्रैक्टिसिंग और इम्प्लीमेंटिंग आवर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे मैम ने आपको बताया कि अगर आप उस पेस को मेंटेन नहीं करें दैट इज़ अप टू यू। फिर ये होगा कि वो जो आपका फील्ड ट्रैकर जो इंशाल्लाह वो जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूंगा फील्ड वर्क ट्रैकर किस तरह फिल करना है। लेट्स सपोज आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और आप फिर 5 आवर्स काम करते हैं, तो आप 2 वीक्स में फिर एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया करेंगे 2 वीक्स का ब्लॉक बना के, जो कि 20 आवर का होगा। और ऑब्वियसली फिर ये होगा कि आपके आवर्स जो हैं वो स्लो पेस के साथ पूरे हो रहे होंगे, और जब पोस्ट वर्क आपका एंड हो जाएगा तो लेट्स सपोज आपके 600 आवर्स हुए हैं तो 6 ही हुए हैं, 400 फिर आपको खुद से सुपरवाइज़र इंगेज करके कंप्लीट करने होंगे, 700 हुए हैं तो जो रिमेनिंग होंगे वो आपको खुद से करने होंगे। सो जो मैंने आपको 20 आवर्स की बताई है, 20 आवर और 1 मीटिंग, दैट इज़ द आइडियल पेस जिसके थ्रू आप विद इन कोर्स वर्क अपने आवर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। Yes, and one more pointer to add to this, very good, अब्दुल्ला, कि अगर आप का वो जो एक क्लाइंट है वो छोड़ के चला जाए फिर आप क्या करोगे, तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा तो होना चाहिए ना, कि एक चला गया तो दूसरा हो। तो आप कोशिश करें कि प्राइवेटली किसी को ले लें। बेसिक मकसद हमारा एट द एंड ऑफ सुपरविजन पीरियड, हमारा मकसद ये होगा कि जब आप तैयार होके निकलें तो आप परफेक्ट हो एज एन IBA, यू आर रेडी टू सिट फॉर एग्जाम। तो हम आउटकम देखेंगे। अगर हमें लगा कि आउटकम उस लेवल का नहीं है तो हो सकता है फिर आपके सारे आवर्स एक्सेप्ट नहीं हो, आपके हाफ आवर्स एक्सेप्ट हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आउटकम होता है ना, आपने जितना ज्यादा काम किया होता है, जितनी प्रैक्टिस की होती है, उतना ही आपका वर्क नजर आ रहा होता है कि अच्छा है, नो, एंड यू आर स्ट्रांग इन योर कॉन्सेप्ट्स। तो ये आउटकम हम चेक कर रहे होंगे बेसिकली। इफ इट्स नॉट देयर तो सुपरवाइजर हैज द राइट टू डिनाई योर आवर्स। सारे नहीं, लेकिन एटलीस्ट हाफ आपके फिर हो जाएंगे जी। और आई होप दैट इट इज क्लियर। और किसी का हैंड रेज हुआ हुआ था, who is here? Yes, सायरा जी, सायरा रियाज। मैम मैम मैं तो स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है ना जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मंडी बहादुर में। तो वहाँ मुझे 6 आवर्स होते हैं, मतलब 8:30 से 1:30 तक, 1 o'clock तक कर लें। तो जो साइंस सही रहेगा मैम, वहाँ पे मेरा सुपरविजन हो जाएगी इजीली, आवर्स फ्री हो जाएंगे बच्चों के साथ काम करने के। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, सेंटर है, और इसमें सारे टाइप के बच्चे हैं। मेंटली चैलेंज भी है, फिजिकली चैलेंज भी है, विजुअली इम्पेयर्ड भी है, और hearing impaired। सायरा, आपका क्वेश्चन क्या था? आपकी आवाज तो ऐसी क्लियर मैम नहीं थी जी। जी मैम, मैं कह रही थी कि मैं 6 आवर्स अपने स्कूल में जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। वहाँ चारों डिसेबिलिटीज हैं जो बेसिक हमारी हैं, हियरिंग और विजुअल और वो मेंटल चैलेंज ये हैं। तो मैम मेरी ये रिक्वायरमेंट जो है वो हो जाएगी ना, आवर्स मेरे जो आवर्स का आपने जो रिक्वायरमेंट है बच्चों के साथ काम करने की, तो मैं इन चारों के साथ, चारों डिसेबिलिटीज के साथ काम कर सकती हूँ? इज इट फाइन? सिक्स जी, आवर्स मेरे होते हैं बेसिकली। आप ABA अप्लाई कर रही हैं ना, ABA के प्रिंसिपल्स? ऑलमोस्ट मैडम, लेकिन ये तो मैंने अभी सीखना है ये तो गवर्नमेंट जॉब है ना, अब मैं उनके ऊपर ABA अप्लाई करूंगी जब मैं सीखूंगी। RBT का मैडम कर रही हूँ, वो कोर्स तो कंप्लीट है, सीरीज कंप्लीट है, एग्जाम देना है और सुपरविजन उसकी हो रही है।
तो बाकी ये है कि जितना सीखे उतना अप्लाई कर रही हूँ, बाकी आप आपसे सीख के फिर एबीए को अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आपको कोई आपके सुपरवाइजर कुछ असाइनमेंट देते हैं ना, जैसे सारा कोई असाइनमेंट दे रही है इस हफ्ते आप ये करके आइएगा, नेक्स्ट वीक मैं देखूंगी, या जी अब्दुल्ला जी आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, इफ यू आर कंप्लीटिंग दैट असाइनमेंट देन दैट्स फाइन ठीक विद है। नहीं क्लाइंट्स मेरे ऑब्वियसली। पास मैडम वो कम्युनिटी है, मतलब कि वो मैं 6 to 7 आवर्स अपने स्कूल में लगा रही हूँ, पूरे कर रही हूँ। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि वो ठीक रहेगा ना मेरा, मैं वहाँ से ले जी सकती हूँ बच्चे। जी बिल्कुल हो जाएगा, बस आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें जो आपके सुपरवाइजर देते हैं, और कंसेंट ले लें फ्रॉम द पेरेंट, जी मैम ठीक कंसेंट जरूरी होगी, ठीक है। है, थैंक यू मैम। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन था? समवन एल्स वाज आल्सो रेजिंग हैंड राइट नाउ। दो लोगों ने रेज हैंड किया हुआ था। अच्छा किसी और का कोई क्वेश्चन है? Ma'am, how many terms we have? 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हैं, जिनमें से जो ज्यादा एम्फेसिस है वो सेकंड और थर्ड टर्म के ऊपर है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला वी आर वेरी कन्वीनियंटली गोइंग, हल्का पेस होता है, इजी इजी होता है क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद हम पेस पकड़ते हैं सेकंड और थर्ड टर्म के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज भी है, जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा परसेंटेज क्वेश्चंस की भी होती है, विच इज असेसमेंट्स, डेटा कलेक्शन, बिहेवियरल इंटरवेंशंस एंड टीचिंग मेथडोलॉजीज। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे हम सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सबसे हैवी असाइनमेंट्स इन्हीं की होती हैं। और फिर एक एंडिंग टर्म 4th टर्म है जिसमें हम फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हैं, और विच इज एथिक्स पोर्शन एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो दिस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय द कोर्स, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल एंजॉय इट। बट इफ यू आर वर्किंग तो फिर वो जिसे कहते हैं ना सही से पॉलिश हो जाने वाली बात होती है, ठीक है। वर्किंग एंड अप्लाइंग ऑल्सो देन दैट इज वेरी गुड Inshallah, ma'am. इंशाल्लाह। 75% is the passing criteria. 11 months में टर्म्स की ड्यूरेशन डिफरेंट है, सो जो पहली वाली टर्म है उसकी ड्यूरेशन 2 months है, उसके बाद फिर 3 और 3 months की ड्यूरेशन की टर्म्स आ जाती हैं, जो कि हमारी थोड़ी सी एक्सीड कर गई थी लास्ट टाइम, एंड देन द लास्ट टर्म विच इज ऑफ 3 months एज वेल। Okay, so Mehak ka question hai, can we have some main insights of the IB exam, where it will be, how to prepare for it, and what's included? Okay, so IB exam is conducted online. When all of your requirements are complete, then an exam button, request exam button will appear on your portal. You can request the exam anytime and attempt the exam as per your convenience. No cheating, they will be observing you, they will be recording all of your behaviors, and what's included in it is the IBA task list, which is available on the IBAO website. Downloads, IBAO downloads. If you go in the IBAO downloads, you press English, and then you search for the document with IBAREO written, right? So all the exam contents are available there, and we go by that task list. Most of our coursework is aligned with that task list. Some things are rearranged in different orders to make it more convenient for you, but we cover everything, and some things are additional as well in this coursework. So IBA downloads के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको task list मिल जाएगी, आप उस पे गौर कीजिए, सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी पे बिल्डअप हुआ होता है, और जो बाकी आपको वेटेज है वो बता दी जाएगी, लेकिन वही बात है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो सेकंड और थर्ड टर्म में जो हम कवर करेंगे उसी की है सबसे ज्यादा वेटेज IBO एग्जाम में भी, ठीक है।
बाकी आपको Excuse me? इंशाल्लाह it will be convenient for you, don't worry. The coursework and the supervision will be convenient for you. जी मरियम. अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई वांटेड टू आस्क कि आफ्टर डूइंग दिस IBA हम लोग के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक हम क्या कर सकते हैं, और बिफोर गिविंग द एग्जाम और आफ्टर गिविंग द एग्जाम. जैसे कि IBT में था कि एग्जाम से पहले आप ये कुछ कर सकते हैं और एग्जाम के बाद आप इस तरह से कर सकते हो. तो IBA के लिए भी बिफोर गिविंग द एग्जाम और आफ्टर गिविंग द एग्जाम कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, और BCBA, BCABA और IBA एंड QABA इनके लेवल्स में क्या डिफरेंस है. वो तो मुझे पता चल गया सेम बोर्ड डिफरेंस है, लेकिन एग्जैक्टली जहां जहां पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जॉब वो हमारा क्या क्राइटेरिया हो सकता है. थैंक यू. Thank you. So this is also a very, like important question to ask. Many people ask this. So what basically has happened right now is IBO is spreading at a phenomenal rate. इसकी वजह क्या है? पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे दूं. इसकी वजह ये है कि all other boards are not concerned with certifications all over the world. उनका बेसिक्स जो है वो US है, अमेरिका है, वहीं पे कंसंट्रेटेड है, और बाकी की दुनिया के लिए उनका इतना कंसर्न नहीं है. जबकि IBO की फॉर्मेशन का मकसद ये था कि ओवरऑल जो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस का एक गैप बन गया था, DACB ने जब विड्रॉ किया तो उस गैप को फिल किया जा सके, और जिसकी वजह से इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अकोमोडेटिंग हैं, वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव है, यानी कि वो दे आर वेरी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स डिफरेंट opinions, different cultures, and that is why they are spreading. अब क्योंकि उनका फोकस पूरी दुनिया है, they are focused about the world basically. अब कुछ ऐसी you can read the IBO newsletter for this information. ज़्यादा जो डिटेल इंफॉर्मेशन है IBO की वेबसाइट पे इनके न्यूज़लेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें इनकी ग्रोथ के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज हैं IBO की. यू कैन रीड दैट न्यूज़लेटर. 2024 का अभी प्रीवियस जनवरी में लॉन्च हुआ था, एंड देन 2025 letter will also be, newsletter will be available to you in January, right? जिसमें मजीद जो अभी ग्रोथ है उसके बारे में बताया जाएगा, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, एक्टिविटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है. तो कुछ ऐसी क्योंकि मुझे डिटेल्स इतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे IBA is a part of licensing board as well. ठीक है, they are collaborating with the licensing bodies in different countries. I think इसमें रशिया आ जाता है, but I'm not sure. If I'm not sure, I cannot comment on that. But कुछ countries हैं जहाँ पे collaboration. So न्यूज़लेटर के अंदर आपको ज्यादा डिटेल पता चल जाएगी. जनवरी में भी आप फ्रेश वाला पढ़ लीजिएगा. और इसके अलावा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो UAE में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. In UAE, Dubai, Middle East, you can work as a behavior analyst. They are acceptable. और अगर वहाँ पे अभी कोई लाइसेंसिंग की I don't think कि कोई रिक्वायरमेंट है या essential है, कंपल्सरी है, लेकिन अगर हुआ in future तो IBO will be collaborating. This I am sure, because जिसे कहते हैं ना कि हर जगह पे पहुँच गया है IBO. So UAE में भी इनके काफी एस्टेब्लिश हो चुके हैं लिंक्स वगैरह एंड सो ऑन. सो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से दिक्कत नहीं होगी. जो हमारे जो पिछले कैंडिडेट्स हैं उनमें से कुछ तो हमारे पास ही आ ही रहे हैं ऑलमोस्ट, यू समझ लीजिए, और कुछ जो है वो सेंटर्स में जॉब करने वाले हैं, कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं एज अ बिहेवियर कंसल्टेंट. और जो पहले IBTs थे, आइदर दे वर वर्किंग अंडर सुपरविजन प्रॉपर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे IBTs ऐसे कर रहे थे कि वो बस दे वर ऑन देयर ओन, राइट, कि कोई सुपरविजन नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे और बस वो काम कर रहे हैं, विच इज नॉट एथिकल. उनको सपोर्ट की जरूरत है. अगर कोई मेरे पास सपोर्ट के लिए आता है, आई वाज ऑनेस्टली नॉट एबल टू प्रोवाइड सपोर्ट, क्योंकि अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी का इशू आ गया है. तो हमारे पास इतने सारे IBTs हैं सुपरवाइज करने के लिए, लेकिन IBA नहीं है, कम है. सो यू विल बी एबल टू सुपरवाइज दोज पीपल. तो एक यूँ समझ लीजिए कि एक जो बहरान बना हुआ है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा. आई विल बी लाइक
रेफरिंग पीपल, मेरे पास कोई आता है मैं उसको दे दूं, अच्छा आप सुपरवाइज कर दो एंड सो ऑन। तो इस तरह से सुपरविजन की अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास इंशाल्लाह ताला बहुत होंगी। और बाकी सबसे बड़ी बात ये कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इवन जब मैंने कभी पढ़ा था ABA BCABA किया था, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे नहीं पता था BCABA का क्या स्कोप है, क्या एंड होगा, ये तो एंड हो रहा है वट एवर, बट आई लर्न बिकॉज ऑफ दैट रीजन टू गेन नॉलेज, क्योंकि मुझे शौक था पढ़ने का। आई वॉन्टेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, मैं बढ़ना चाहती थी आगे, एक बेसिक नॉलेज से मैं जानना चाहती थी ABA के अंदर आगे एडवांस में क्या क्या चीजें थी, इसलिए मैंने पढ़ा। एंड when you are pursuing the knowledge, then inshallah ta'ala Allah will make ways for you. Always remember that this is the best answer which I can give you. बाकी कोई भी आपको गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि जॉब की क्या कंडीशन होगी, क्या होगा, ये this is on your luck as well as on your knowledge and on your hard work as well. ठीक है? I hope this is the answer. और अगर आप लोगों में से कोई, सारा और या अब्दुल्ला में से कोई इसमें ऐड करना चाह रहे हो आंसर देन, या कोई और मालूमात? नो, इज इट फाइन? जी मैम, कवर हो गई सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा मैम, आपने कहा कि अभी दुबई में मतलब यूएई में लाइसेंस का नहीं हुआ, तो लाइसेंस से आपकी मतलब क्या मुराद है? जैसे लाइक हम RBT का लाइसेंस लेते हैं, तो उस सेंस में आप कह रही हैं या मींस क्या आप? दुबई में जो करंट सिचुएशन है वो CDA लाइसेंस होता है, लेकिन CDA लाइसेंस कंपलसरी नहीं है। एक पहले होता था, क्या कहलाता है वो, पहले अच्छा होता सही था है, DHA लाइसेंस। आप वो गवर्नमेंट की लाइसेंस की बात कर रही हैं जो हम DHA से जी लेते जी हैं एग्जाम देके। जी, तो अच्छा DHA अच्छा वाले अच्छा। अब लाइसेंसर किसी को भी नहीं दे रहे। DHA वाले जो है वो रेफर कर देते हैं CDA को। तो CDA लाइसेंसर जो है वो अभी कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी टू वर्क, लेकिन अगर कभी हुआ फ्यूचर में तो IBO विल डेफिनेटली बी कोलैबोरेटिंग विद देम। हाँ हाँ, अभी नहीं है, यहाँ पे नहीं है IBA का इतना वो लाइसेंस का। यस, डेफिनेटली। सो मैम दिस मेरा इज आई एम क्वेश्चन, श्योर अबाउट। और कोई क्वेश्चन है? जी मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम जैसा इंटरनेशनली इसकी, जैसे वो एक मैम ने पूछा ही कि बाहर हम इसका कर सकते हैं, यानी जैसे मेरा इरादा फ्यूचर में है UK या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में मूव करने का, तो मतलब ट्रूली स्पीकिंग मैं इसके लिए 1 साल में ही हूँ कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, लेकिन बस एक जो है ना वो एक रिस्क पे आप कह सकते हैं कि है कि मैं बाहर मूव करूँ और पढ़ूँ पढ़ने के लिए, जैसे आप कह रहे थे कि मुझे शौक है, मुझे भी बहुत शौक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई मे भी पंजाब में, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि किसी ने भी ये कोर्स स्टार्ट किया हो, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट उसमें है, कोर्स में है। तो मैं इसका जैसे इन 3 कंट्रीज में अगर मैंने जैसे वेट किया है, मैंने ये डिसीजन खुद ही लिया है और मैंने वेट किया है कि मैं इसको करके जाऊँ पूरे IBA को, तो इसका वहाँ भी मुझे बेनिफिट होगा। जैसे जाहिर बात है हम एज एनालिस्ट वहाँ मेरा ख्याल है नहीं काम कर सकेंगे, लेकिन चले कोई इसका प्लस पॉइंट होगा वहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट का या नहीं। मैं अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ें वहाँ अप्लाई करती हूँ या किसी भी स्कूल में, तो ये मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूँ। ओके, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा, राइट? ऑस्ट्रेलिया मैम कनाडा, UK भी। UK, ओके। सो देखिए, दे हैव देयर लाइसेंसिंग बोर्ड्स, राइट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एवरी कंट्री सिचुएशंस। कनाडा का मुझे पता है, कनाडा में एक्सेप्टेबल है। ऑस्ट्रेलिया आई एम नॉट श्योर। 2025 में BACB वहां से भी पुल आउट कर रहा है, मीन्स दैट BACB is not going to exist there anymore, so IBO will be there definitely. अच्छा, और अगर आप UK की बात करिए, आई थिंक UK also has licensing board, but I am not sure about this information. लाइसेंसिंग है वहां पे या होने वाली है, ऐसे ही कुछ है, तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन। आप
लोग ये कर सकते हैं कि आप उस कंट्री की लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कंफर्मेशन ले लीजिए। अब जैसे दुबई का भी मैंने बोला कि लेकिन अभी जो सुमेरा हिलाल हैं वो चैट में मैसेज करी हैं दैट द लाइसेंस इज कंपल्सरी, but I had the other information कि CDA license is not that compulsory, but she's saying it's compulsory, so I'm not sure. What you can do is कि आप वहाँ जाके या किसी वहाँ पे employers हो वहाँ से आप या किसी और employee से पता कीजिए कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, but definitely IBO is reaching everywhere. I can only tell about Pakistan. So Pakistan में if you want to work independently as a visa analyst, you can do the IBA. सही है, सही हो गया। मैम आपने एक बात की थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जॉब कर रही हूँ, बच्चे के साथ काम कर रही हूँ, तो आपने कहा कि आप ABA के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही हैं कि नहीं। वो थोड़ी सी मेरे माइंड में कंफ्यूजन आ गई कि जो है वो इसको तो हमने अभी स्टार्ट करना है ना, मतलब हम लोगों ने अभी सीखना है कि ABA के प्रिंसिपल्स को हमने अप्लाई करना है कि नहीं। ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं जितना हमने अपने मास्टर्स एमफिल लेवल पे, लाइक मैंने एमफिल स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है और स्पीच लैंग्वेज का भी किया हुआ है, स्पीच थेरेपिस्ट की, जितना हमें जितना सिखाया गया हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम ABA को अप्लाई नहीं कर रहे। तो वो तो हम आपकी सर्टिफिकेशन से या अपने कोर्स कंटेंट से सीखेंगे तो अप्लाई करेंगे, इज इट? जी जी बिल्कुल, ABA अब आप सीखेंगे तो आप अप्लाई करेंगे ना। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 40 आवर्स का कोर्स किया हुआ है तो आपको पता होगा कि चेनिंग है, चेनिंग इज एन ABA प्रिंसिपल, मे बी यू आर अप्लाइंग राइट नाउ चेनिंग और आपको पता भी ना हो कि चेनिंग है, ये ABA का ही है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हम अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती। और जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में ही बताया था कि सुपरवाइजर्स विल बी असाइनिंग वर्क टू यू, ये नहीं कि आप जो भी उठा के कर लें, दे विल बी गिविंग वर्क टू यू और वो आपको कंप्लीट करना होगा एंड यू विल बी डिस्कसिंग विद द सुपरवाइजर कि अच्छा चले मैं ये नहीं तो ये कर लूं। सो हमने अलाइनमेंट ऐसे रखी हुई है कि कोर्स वर्क बेसिकली जो आपका है वो प्रैक्टिस होता रहे साथ साथ सुपरविजन में, राइट। तो वो कंपोनेंट्स आपके सारे प्रैक्टिस होते रहे, वही फिर सुपरविजन में हैंड ओवर हो रहे होते हैं, यूं समझ लें। तो अगर आप स्पीच से रिलेटेड कोई थेरेपी अप्लाई कर रही हैं, दैट विल नॉट बी काउंटेड। अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रॉमा से रिलेटेड आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रही हैं तो वो ABA से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप एज अ स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक बन सकता है ABA से, क्योंकि राइटिंग में हम ABA भी डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेपिंग कैसे करवानी है या चेनिंग कैसे करवानी है। लेकिन अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड कोई टारगेट डाल दें जो कि ABA का नहीं है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो ये आपके सुपरवाइजर्स आपको जैसे जैसे होगा गाइड करते चले जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जी फरियाल कामरान also has a question। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आई हैव 2 क्वेश्चंस। नंबर 1 तो ये जैसे सुपरविजन का सब डिस्कस हुआ, तो आई एम वर्किंग इन सेंटर इन ऑनलाइन एज वेल एंड आई एम वर्किंग एज एन ABA थेरेपिस्ट। तो अभी जैसे फ्यूचर में मेरा प्लान है इन द मंथ ऑफ जनवरी ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट के मैंने ब्रेक लेना है फॉर 1 month। So like December में I will be working and I will be working till mid January. So उसमें जो है like जनवरी का जो बाकी वीक्स है उसमें मैं ऑनलाइन काम करूंगी, लेकिन मैं फिजिकली अपने सेंटर को ज्वाइन नहीं करूंगी। तो उसका कोई like जैसे सुपरविजन के लिए हमें जो भी टारगेट जो भी हमें दिए जाएंगे टारगेट्स या जो भी हमने उसमें काम करना होगा, तो वो कंपलसरी तो नहीं कि हमने एक ही क्लाइंट के साथ करना है। like if I start with my physical client and then later on I can implement on my online client. So is it possible? Yes, definitely it is possible. We are not that strict। हम आपको लगते हैं क्या शक्ल से इतने strict? इतने नहीं नहीं, but I just wanted to clear कि मतलब जैसे क्योंकि पहले मुझे लगा कि सर ने जब एक्सप्लेन किया कि अगर वो क्लाइंट छोड़ जाएगा तो क्या, फिर इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक ही क्लाइंट से शुरू से लेके एंड तक एक के साथ काम करना तो यू कैन स्विच द क्लाइंट, बट बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो लाइक ऑनलाइन एंड फिजिकल। सो okay, yes, so, definitely I understand that only online is we do not recommend only online, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें
बोला कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं और फिर वो ऑनलाइन करते नहीं थे। वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली काम नहीं करते थे बच्चे के साथ। एक ऑनलाइन में दो तरह का होता है। एक ऑनलाइन ये होता है कि आप मदर को बता रहे हैं और फिर मदर वर्किंग कर रही हैं, और दूसरा ऑनलाइन ये होता है कि आप कैंडिडेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। No, we are directly interacting with the clients, or like it's a company. So like I'm working with the same company, online and physical. So it's not like I'm privately practicing. It's a company, so I'm working under a company. Yes, so I would advise कि बिल्कुल definitely it will be counted, लेकिन हर तरह का आपको experience होना चाहिए, यानी कि physical work का भी और online का भी। So आप physical फिर Okay. join कर लेंगी ना दोबारा, यानी in Yes, February? yes. Like it's just a 1 month break due to some family commitment, and then inshallah, by February, I will rejoin my physical job. Inshallah, no issue at all, no issue. Yeah. And the second question is about the fee payment. So like जैसे अभी सर ने बताया कि हमने जो registration है वो भी साथ ही करवानी है. So like इसकी deadline क्या है? By what time we have to pay, and like what are the procedure and all that? ठीक है, जो हमारी जो इंटरनल फी पेमेंट की डेडलाइन है, मिस्टर सईद का नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया गया है। आई विल बी रीशेयरिंग इट, तो वो नंबर सेव कर लीजिए, और जो भी पेमेंट है उसकी रिसीट वगैरह आप उनको भेजेंगे, ठीक है? ही विल बी हैंडलिंग एंड कीपिंग द रिकॉर्ड्स। और फिर इसके बाद आ जाता है आईबीओ की पेमेंट। तो वो आईबीओ की वेबसाइट पे जाके करनी चाहिए, विच इज वो हमें तो डेफिनेटली नहीं करनी ना, वो तो उनको करनी है। तो विच इज $150, एंड इट विल बी पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, और बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है बैंक की, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउ कर देते हैं। तो वो आप बहरहाल ऑप्शन यूज कर सकती हैं, और आईबीओ की वेबसाइट पे उनको फी करके आपने अकाउंट बनाना है। तो वो आप 1 दिसंबर के फर्स्ट वीक में कर लें, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक में कर लें, ताकि आपकी सुपरविजन जो है वो टाइमली स्टार्ट हो जाए। राइट। और बिफोर लाइक बाय एंड ऑफ नवंबर हम अपनी ये कोर्स फी सबमिट कर दें, एंड देन इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हमने बोर्ड फी पे करनी है। Yes, Thank you last so much, date. ma'am. Thank you. Thank you. Last date for the coursework fee payment is 20 November. Because हमें फिर आपके नाम को क्लासरूम, हमारा एक क्लासरूम है उसके अंदर हमें ऐड करना है, आपका डेटा, आपके सुपरविजन फोल्डर्स आपको असाइन करने हैं। सो बहुत सारा काम है, जिसके लिए हमें जरूरत है कि 10 दिन का हमें मार्जिन मिले। हम आखिरी दिन तक फी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 20th November इज द कट ऑफ डेट, ठीक है? उसके बाद प्लीज हमें तकलीफ नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमें तैयारी करनी है, ठीक है? सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में है? someone else wants to clarify? सायरा, आपका हैंड रेज हुआ है, यू वांट टू आंसर, आस्क समथिंग? I think it's an old hand raise, right? आप नीचे करना भूल गई। ठीक है, so everything is good. Inshallah Taala, we are looking forward to another wonderful year ahead. और कोई फीडबैक आया तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट आई एम वेरी ग्लैड अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वाले जो कोर्स कोहोर्ट है, दिस इज अबाउट टू एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह ताला आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू conduct your classes as well. So get ready, and असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पीडीएफ्स आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी, बुक्स पीडीएफ फॉर्म में शेयर होंगी, कोर्स वर्क का सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में शेयर होगा, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड टू यू, ठीक है? अगर आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा मैम, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, हम जैसे अपनी ये कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग, फिर उसके बाद हम एग्जाम में बैठते हैं, इंशाल्लाह ताला अगर फर्स्ट टाइम में हम पास हो जाएं तो व्हाट विल, और अगर नहीं पास होते तो मतलब हम इसी मतलब क्या टाइम ड्यूरेशन है कि हम उस टाइम ड्यूरेशन में इतनी टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम, या फिर हमें दोबारा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, देन अगेन वी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम? सो ये मेरा सवाल है। That is also a very common question and a very good question. आपको दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक दफा हो गया बस बहुत है, ठीक है? और
आपके आवर्स भी दोबारा नहीं जरूरत है, एक दफा हो गए चले गए बस, ठीक है। अब इसके बाद आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि एग्जाम प्रिपेयर करके और एग्जाम दे दें, क्योंकि चीजें फ्रेश होती हैं तो वो आप इजीली दे देते हैं। अगर आप डिले करेंगे तो उतना ही ज्यादा आपका याद नहीं रहेंगी चीजें। तो हमारे साथ जो अभी वाले कैंडिडेट्स हैं वो, क्योंकि स्टूडेंट्स का आपस में दोस्ती भी हो गई है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और वो आपस में नोट्स शेयर करते रहते हैं एंड एवरीथिंग, डिस्कशन होती रहती है, मुझे नहीं पता क्या क्या चलता रहता है, लेकिन बहरहाल दे आर प्रिपेयरिंग, ठीक है। सो आप रीअटेम्प्ट करना चाहें, अल्लाह ना करे आप ये फेल होने की मेंटेलिटी से आप नहीं जाइए, आप समझें कि हम पास होंगे ही होंगे, पूरी तैयारी करके जाइए। लेकिन अल्लाह ना करे किसी वजह से रह गए तो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट करंटली कोई चार्जेस नहीं है, आज से 4 साल बाद होंगे मुझे नहीं पता, वट लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर तक तो नहीं होंगे जब तक आप लोग आओगे। तो एडवांस में क्योंकि आईबीओ वाले दे देते हैं नोटिस, तो अभी तक तो कोई चार्जेस नहीं है, यू कैन गो अहेड एंड रीअटेम्प्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट वो फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो आई वुड रेकमेंड पहली ही दफा अच्छी तरह से तैयार करके और एग्जाम दे दीजिए इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह। थैंक यू। मलिहा wants to ask about सऊदिया। सऊदिया का किसी को पता है? मुझे नहीं पता। सऊदिया में I don't know, like कुछ लोग सेंटर्स में काम कर रहे हैं और कुछ लोग प्राइवेटली काम कर रहे हैं। लाइसेंस की क्या रिक्वायरमेंट है आई डोंट नो, प्रोबेबली कोई नहीं है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही चल रहा है बस वहाँ पे। तो मुझे सऊदिया के हालात तो पता है, वहाँ पे बहुत कम थेरेपिस्ट और अच्छे थेरेपी सेंटर, बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। बट लाइसेंस रिक्वायरमेंट का आई हैव नो आइडिया, यू कैन आस्क समवन हु इज एन एम्प्लॉयर देयर और हु इज एन एम्प्लॉई, ठीक है। License is required everywhere? I don't know which license. Okay, ठीक है, होगा। आई थिंक एज एन IB आपको लाइसेंस लेने में परेशानी तो नहीं होगी, बट एज अ थेरेपिस्ट होगी। बट आई नो पीपल हु आर वर्किंग देयर एज अ थेरेपिस्ट। ये आई थिंक मुझे नहीं पता कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता, बट I'm not the best person to ask about it, right? So this is this. As I know about UAE and Bahrain, so like there is no such certification for IBA, for ABA. So like if you are working there as an ABA therapist, so you just need the board license. So like because I was working in Dubai, and at that time no DHA license was there for us, so they were not entertaining us. So only the RBT license was valid if you want to work as an ABA therapist. And it was the same in Bahrain. So like their boards or their license facilities were not entertaining the BCBAs, the BCABAs or the RBTs. So if you have the board license, that was more than enough for you to work there. ठीक है। अच्छा, अब किसी ने यूरोप के बारे में क्वेश्चन किया है, यानी सबको जो है ना वो बाहर जाना है पाकिस्तान से, पूरी दुनिया का पूछ रहे हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं पूछ रहा। तो वही बात है कि मुझे यूरोप का भी नहीं पता, बट IBO is spreading, and the way it is spreading, I personally believe that everyone will be providing licensure to IBA in futures, right? Inshallah ताला, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको वहाँ की खुद ही इंफॉर्मेशन सर्च आउट करनी है, क्या उनके पास लाइसेंसिंग बोर्ड है। अगर लाइसेंसिंग बोर्ड है तो आपके पास अगर बिहेवियर एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन है दैट यू हैव अक्वायर्ड आफ्टर डूइंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, और 1 साल का आपने कोर्स वर्क पढ़ा है और प्रैक्टिसिंग की है, तो फिर आपको उसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाता है। लाइक मुझे पता है कनाडा में इस तरह होता है कि अगर आपके पास बिहेवियर एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन है तो वो इक्विवेलेंस आपको सर्टिफिकेट अपने लाइसेंस दे देते हैं। तो इस तरह होता है, बाकी हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया होता है, मगर ऐसे नहीं है कि आपने IBA किया तो कहीं पे आप जाओगे तो उसकी बिल्कुल कहीं पे वैल्यू नहीं होगी। आपको
जहाँ पर भी आप जाएंगे और उनकी अपनी लाइसेंसिंग बॉडी अगर होगी तो वो आपको उसके साथ इक्विलेंस सर्टिफिकेट को जनरेट करके दे देंगे। हो सबके लेबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कहीं पर टर्मिनोलॉजी हो सकता है कोई और यूज़ हो रही हो, लेबल कोई और यूज़ हो रहा हो, मगर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हर जगह पर। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो और ये मैं आपको बता दूं कि IBS बहुत कम है इस वक्त और IBTs बहुत ज्यादा हैं, तो देयर इज ऑलवेज सुपरविजन अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। बहुत सारा हमने टाइम ले लिया आपका और आपने हमारा, बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे का टाइम ले लिया, सो थैंक यू सो मच। आई होप दैट इट वाज अ detailed briefing for you guys, और कोई questions unanswered नहीं रह गए होंगे। And see you inshallah on 1st December. First class will be held inshallah taala. Looking forward to see you. Okay, Thank you so much. take care, bye bye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.